لاہور کی سڑک پر اگر میرا ایک دوست، میرا ایک کارکن وہ اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھائے اور اس کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے، یا میری ایک بہن جو عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگائے اور اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور ایک جھوٹے کیس میں تمام ہماری لیڈرشپ کو جیل میں بٹھا دیا جاتا ہے، ان پر جھوٹے کیسز لگا دیے جاتے ہیں اور وہ تقریباً 2-3 سالوں سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کے کہنے پر نیشنل پریس کلب میں جو بندہ جائے اور وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دے، ان کو انصاف ملے، تو ایسے نظام میں اگر آپ ڈیولپمنٹ کریں تو ٹھیک ہے، سڑکیں تو بن جائے گی لیکن قوم کبھی نہیں بنے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ازا اور ہے، مجاہد کی ازا اور۔ ہمارے پی ایم اے سینٹرل پریزیڈنٹ جو کہ لاہور سے آئے ہیں اور یہاں ہمارے مہمان ہیں، یہاں تو مہمان ہے لیکن آپ نے واپس بھی جانا ہے، اور آپ نے جو تقریر کی ہے تو ہم آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جس نے وقت گزارا ہو تو وہ اس طرح ہے کہ ظالم نظام سے باغی ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور وہ جس طرح کی جیل کاٹ رہی ہے اور جس طرح بہادری کا، دلیری کا، جرأت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور اپنے حصے کی جنگ تو وہ لڑ چکے ہیں لیکن ابھی ہمارے حصے کی بھی جنگ وہ لڑ رہی ہے، تو ہم سب یہاں پشاور سے پاکستان کی اس بہادر بیٹی کو، اس بہادر ماں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں یہاں سے۔ ہمارے کراچی سے آئے ہوئے مہمان، ہمارے پی ایم اے کے پی چیپٹر اور نئی منتخب شدہ ہمارے جو ارکان ہیں پی ایم اے کے، سب کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کا، جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں پی ایم اے سے منسلک، ہمارے انصاف ڈاکٹر فورم کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور یہاں پر آپ سب کے سامنے مخاطب ہونے کا ایک موقع فراہم کیا۔ ہمارا ارادہ بھی تھا، ہمارے آئی جی ایف کی ٹیم سے ملاقات جب میری ہوئی تھی تو میں چاہتا تھا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ایک نشست ہو، ایک کانفرنس ہو، کیونکہ ہم عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہیلتھ اور ایجوکیشن ہماری پریارٹیز ہیں، اور اس کو جو ہے ہم ریویمپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو فردر ایکسپینڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے تھے کہ یہ کمیونٹی، ہماری ڈاکٹرز کی جو کمیونٹی ہے وہ ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے بعض چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو سکتا ہے سامنے نہ آئی ہوں، یا ہو سکتا ہے ہمارے علم میں نہ ہو، تو آپ ہمیں بہترین مشورے دے سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہم سنجیدہ ہے، اور ہیلتھ کا جو نظام ہے انشاءاللہ تعالی اس کو بہترین کریں گے۔ خلیق صاحب نے کہا کہ ہم جو ہیں دوسرے ایک صوبے کے ساتھ ایٹپار ہیں۔ ہم ایٹپار اس لیے نہیں ہیں، ہم آگے ہیں، کیونکہ ہم اپنی عوام کو خیبر پختونخوا کے شناختی کارڈ جس کے ساتھ ہیں ان کو فری صحت دے رہے ہیں، جو پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت میں شروع تھا لیکن بدقسمتی سے اب وہ بند ہے، تو وہ مفت صحت نہیں دے رہے ہیں اور ہم الحمدللہ دے رہے ہیں۔ جو ہمارے ایک دوست نے یہاں پر نیوٹریشن اینڈ سٹنٹنگ ایشو انہوں نے کہا، تو عمران خان صاحب کی تقریر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ بھی جو ہیں ہماری نیوٹریشن کے حوالے سے کافی سیریس تھے، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ڈی پی میں ان کو جو ہیں ہم ایلوکیشن زیادہ کریں گے اور اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے۔ یہ آج کا جو کانفرنس ہے پریونشن کا، تو ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ ہماری جو ہے
परहेज़ इलाज से बेहतर है, लेकिन बदकिस्मती से परहेज़ ही हमसे नहीं होता। खुराक में तो छोड़े, निज़ाम में भी हमसे परहेज़ नहीं होता। एक काम जो जिसका काम होता है वो नहीं करता। और जब भी अगर एक मूची जो है वो डॉक्टर का काम शुरू कर दे तो वो अस्पतालों का भी बेड़ा गर्क कर देगा और अपना काम से तो वैसे भी गया। तो हम अपने लोगों को ये परहेज़ का जो हमारा बेसिक बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इलाज से बेहतर है, तो वो तो सिखाएंगे। साथ साथ में बाकी लोगों को भी हम ये ट्यूशन देंगे कि अपने काम से काम रखो, दूसरे के कामों में टांगे ना अड़ाओ। हेल्थ और एजुकेशन, जिस तरह के मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ज़रूरी है एक माशरे को बेहतरीन माशरा बनाने के लिए, क्योंकि शायद आप में से बहुत से लोग वो थाना या कचहरी नहीं गए होंगे, लेकिन आप में से सब के सब जो हैं वो स्कूल और अस्पताल गए होंगे। बाकी चीज़ें जो हैं, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, वो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ, इसके साथ हमारी आवाम जो है वो डायरेक्टली मुंसलिक हैं। हमारा टीचर मेरी आवाम का मुस्तकबिल संवारता है और मेरी आवाम को ये लगता है कि जब वो बीमार होता है तो मेरा इलाज करने वाला मेरा डॉक्टर है। तो टीचर के साथ हमारी आवाम का मुस्तकबिल है और अल्लाह के बाद डॉक्टर के साथ हमारी आवाम का जान का इशू आता है। तो हमारे मुस्तकबिल और जान अगर ख़तरे में हो तो सूबा ख़तरे में होगा, और जब सूबा ख़तरे में होगा तो हम सब ख़तरे में होंगे। और इस ख़तरे से बचाने के लिए हम तो अपने सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों पर भी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि अकेला हुकूमत या अकेला एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। जब कलेक्टिव एफर्ट्स आती है तो सिस्टम जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है। हमने हर बंदे को, गवर्नमेंट से मुंसलिक हर बंदा, हर डिपार्टमेंट का, उसको एहसास जिम्मेदारी दिलानी है। जब हर बंदे के साथ अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और उसको ये लगे कि अगर मैं टाइम पर अपनी ड्यूटी पर नहीं जाता तो ये भी करप्शन में आता है, अगर मैं अपने मरीज का सही इलाज नहीं करता तो ये भी करप्शन में आता है, अगर मैं एक स्टूडेंट को सही पढ़ाई नहीं देता, उसको सबक सही नहीं सिखाता, ये भी करप्शन के जिम्मे में आता है। तो ये एहसास जिम्मेदारी हम सब में होनी चाहिए। मैं अपना 100% दे रहा हूं, बल्कि अपनी इस्तिताअत से ज्यादा, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उनको भी देख रहा हूं, दूसरी तरफ हमारी गवर्नेंस की इश्यूज हैं, उसको भी देख रहा हूं। अगर सिर्फ हम फोकस करें गवर्नेंस पर तो हमारी गवर्नेंस जितनी भी ठीक हो, अगर हम यहां पर दूध की नहरें भी बहा दें लेकिन मेरी आवाम को इंसाफ ना मिल रहा हो तो उन दूध की नहरों का कोई फायदा नहीं है। अगर हम यहां पर पूरा केपी के इस तरह डेवलप करें कि कोई कच्ची सड़क ही ना हो, लेकिन लाहौर की सड़क पर अगर मेरा एक दोस्त, मेरा एक कारकुन, वो अपनी पार्टी का झंडा उठाए और उसको जो है उठा लिया जाता है, या मेरी एक बहन जो इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाए और उसको उठा लिया जाता है और एक झूठे केस में तमाम हमारी लीडरशिप को जेल में बिठा दिया जाता है, उन पर झूठे केसेस लगा दिए जाते हैं और वो तकरीबन 2-3 सालों से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इनके कहने पर नेशनल प्रेस क्लब में जो बंदा जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दे, उनको इंसाफ मिले। तो ऐसे निज़ाम में अगर आप डेवलपमेंट करें तो ठीक है, सड़कें तो बन जाएगी, लेकिन कौम कभी नहीं बनेगी। कौम जिस तरह के मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब हमेशा
कहते हैं कि सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, कौमें बनती हैं आईन और कानून की बालादस्ती से, अदल व इंसाफ से, गरीब और अमीर के लिए एक कानून लाने से, अमीर और गरीब के लिए एक आईन और कानून होने से कौमें बनती हैं। हम रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना में पक्की सड़कें नहीं थी, लेकिन वहां पर जब इंसाफ का निज़ाम राइज हुआ तो आप तारीख उठा के देख ले कि मुसलमानों ने कितनी हुकूमत की, कितने एरिया पर की और कितने साल की। आज मुसलमान कितने हैं? उससे कई ज्यादा हैं। तब 60 लोग जो हैं वो 60,000 का मुकाबला करते थे। आज हम अरबों में हैं, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। तो बहरहाल बातें ज्यादा हैं, टाइम कम है। हमने एक जद्दोजहद शुरू की है इस निज़ाम को बदलने की, जो घिसा पिटा निज़ाम है, जहां पर अमीर के लिए अलग, ताकतवर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए अलग कानून है। इस निज़ाम की तब्दीली के लिए हमारी जद्दोजहद इमरान खान साहब के साथ 18 साल पहले शुरू हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसी नज़रिए के तहत और उस जद्दोजहद के तहत हम अभी भी वो सफ़र जारी रखे हुए हैं। इसमें हमने हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को अपने साथ शामिल करना है। आपसे हम ये उम्मीद नहीं रखते और रखनी भी नहीं चाहिए कि आप हमारे साथ जो है डंडे खाएं, लेकिन ये उम्मीद तो रख सकते हैं कि जब हमें डंडे पड़ रहे हो तो आप लोगों के कैंप्स जो हैं वहां पर मौजूद होने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मिलकर पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर मुल्क बनाएंगे, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, जिसकी जद्दोजहद हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की थी और जिसकी तामीर इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी की शक्ल में इमरान खान साहब की सरबराही में होगी इंशाअल्लाह ताला। इस सब में आप सब की सपोर्ट चाहिए। जो स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, उस स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी शुरू है। तो इंशाअल्लाह ताला आप सब से मुझे उम्मीद है कि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, अमीर और गरीब के लिए एक कानून, एक दस्तूर लाने के लिए आप सब हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा लेना इल्लल बलाग। ये कह रहे हैं कि ये ए पॉलिटिकल है, लेकिन ए पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल, दी पॉलिटिकल, इन सब में पॉलिटिक्स होती है। तो पॉलिटिक्स के बगैर ये एक चीज भी पूरी नहीं होती। इमरान खान